Hello everyone, welcome to CMI's Digital Classroom. Today we are going to learn about the most important topic of your class which we face in our daily life maximum or in several places. आप बहुत जगह पे देखे होंगे if we talk about the mobile recharge. Mobile recharge का आपने नाम सुना होगा. आपका जो प्लान रहता है वो इस तरह से रहता है 49 rupees, 199 rupees, 99 rupees, 499 rupees, okay, 799 rupees. So why? Do you know why this? This is because the operator want to tell you that my plan price is not so much. So he or they just reduce 1 rupees only from the enter price. Okay. And sometimes we also used to take in our daily life. For example, in my class, there are 47 students. So if someone asks me that how many students are there in your class, so I can say 50. So 50 is the round off. If suppose in class 5, 32 students are there, then if someone asks me that how many students are there in class 5, I may say near about 30, right? So 30 is the round off of 32 and 50 is the round off of 47. Okay, so this is how, suppose someone may ask you that how many students are there in your school. So आप हो सकता है बोलो कि it's near about 600 because you don't know or you might be know the exact count that 400 and suppose 495 or 486, this type of count you know. Okay, so you will not going to tell exact value that 596 or 581 like this or 486. You will tell in round off. Okay, if it is 498 then you can say 500. If it is 576 you can say 600, right? तो इस तरह का काफी सारे सिचुएशंस आते हैं जब हम लोग जो है नंबर्स का जो राउंडिंग होता है उसको यूज करते हैं. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दैट टाइप्स ऑफ सिचुएशंस वेयर वी यूज द राउंडिंग ऑफ नंबर, हाउ टू राउंड द नंबर टू द नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100 एंड नियरेस्ट 1000 एंड फर्दर आल्सो. सो till now already in your previous classes you have learned about how to round off the number up to 10,000. Okay, up to thousands we have learned. Now we will learn about the further how can round off to the nearest 10,000, lakhs, 10 lakhs, crore also we will learn, right? So the chapter is chapter number 9 and the name of the chapter is rounding numbers. Okay, how can we round the numbers? So how can we round the numbers? So rounding numbers started with the nearest 10. How can we round off any number to the nearest 10? नियरेस्ट 10 में हम लोग कैसे कोई नंबर को राउंड ऑफ कर सकते हैं, दैट वी विल सी फर्स्ट. ओके, सो सपोज वन नंबर आई एम टेकिंग एज एग्जांपल दैट इज 33. वन नंबर आई एम टेकिंग एज एग्जांपल 47. another number I am taking as example 65. another number I am taking as example 96. One more example, let us take 84. So these are the some examples which we have taken, and now we will see how can we round off these all numbers to the nearest 10. तो आपको जब भी कोई भी नंबर दिया हुआ रहेगा और उसको राउंड ऑफ करने के लिए बोला जाए टू द नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 100 और नियरेस्ट 1000, तो आपको सबसे पहले वो प्लेस देखना है जिस प्लेस में इसको राउंड ऑफ करने के लिए बोला जा रहा है. तो यहाँ पे राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 10 बोला जा रहा है, तो हम लोग 10 प्लेस देखेंगे. 10 प्लेस
करेंगे और 10 प्लेस के बाद जो भी नंबर है उसको 0 कर देना है। ये सारे केसेस में होगा। तो चाहे ये जो डिजिट है 10 प्लेस के बाद वाला जो डिजिट है, चाहे कुछ भी डिजिट हो, 0 से लेकर के 9 तक कोई भी नंबर ये रहे, हम लोग का वो 0 होना ही है। फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, ये चाहे 0 हम लोग नहीं लेते, 0 ऑलरेडी इट इज राउंड ऑफ। सो 1 to 4 एक केस हो सकता है नंबर, एक केस हो सकता है 5 to 9। ये नंबर जो मैं बात कर रहा हूं ये वंस प्लेस का नंबर बात कर रहा हूं, जो कि 10th प्लेस के बाद वाला पहले वाला नंबर होता है। 10th प्लेस के पहले वंस प्लेस हम लोग का आता है। तो इन केस ऑफ राउंडिंग द नंबर टू द नियरेस्ट 10 वी हैव टू चेक द नंबर आफ्टर द 10th प्लेस। 10th प्लेस के बाद वाला डिजिट क्या है वो बहुत मैटर करता है। कोई भी नंबर को राउंड ऑफ करने के लिए जो नंबर है उसका जो नियरेस्ट जिस डिजिट पे राउंड ऑफ करने बोला जाता है उसके बाद वाला नंबर पे ही वो डिपेंड करता है। तो फर्स्ट कंडीशन इज अगर ये डिजिट 1 to 4 के बीच में रहता है, 1 2 या 3 या 4 होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सिर्फ 0 करके छोड़ देंगे और कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। तो इस केस में हमारा हो जाएगा 30, ये 0 हो गया, 3 ऐसे है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है। तो मैंने बताया फर्स्ट कंडीशन अगर 1 to 4 में है तो सिर्फ ये वंस डिजिट को हमें 0 कर देना है, बाकी एज इट इज रहेगा। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप अब हो सकता है कि वो जो वंस प्लेस का नंबर हो वो 5 to 9 के बीच में लाई करता हो। अगर वंस प्लेस का नंबर 5 to 9 के बीच में लाई करता हो तो हम लोग को वंस प्लेस का नंबर 0 करने के साथ साथ हमें 10th प्लेस के साथ एक ऐड करना होता है। वी हैव टू वन ऐड विद द 10th प्लेस नंबर। तो यहाँ पे क्योंकि वंस प्लेस में हमारे 7 है, तो 7 है तो ये तो 0 हो जाएगा, लेकिन 1 ऐड हो जाएगा हमारा 10th प्लेस के नंबर के साथ। तो 4 में अगर 1 का ऐड करते हैं तो 5 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ भी हमारा 5 है जो कि 5 to 9 के बीच में लाई कर रहा है, तो इसको हम पहले 0 करेंगे और 6 के साथ एक ऐड कर देंगे, तो इस तरह से ये 70 हो जाएगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये 6 है तो ये वंस प्लेस तो 0 हो ही जाएगा इन एवरी प्लेसेस, एंड क्योंकि यहाँ पे 6 है तो 9 के साथ एक ऐड हो जाएगा और ये 100 हो जाएगा। तो दिस इज हाउ यू कैन राउंड ऑफ एनी नंबर टू द नियरेस्ट 10। Very simple process. First you have to check the number after the 10 places. 10 places के बाद जो भी नंबर है उसको देखना है। अगर वो 1 to 4 में लाई कर रहा है तो 0 करके छोड़ देना है, बाकी एज इट इज लिख देना है। और अगर 5 to 9 में लाई कर रहा है तो 0 करने के साथ साथ हमारे 10th प्लेस का जो नंबर है उसमें एक ऐड करना है। So this is how we can round off the number to the nearest 10. अब हम लोग जो है राउंड ऑफ करेंगे द नंबर टू द नियरेस्ट 100। नियरेस्ट 10 का राउंड ऑफ करना सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाकी सब जो भी राउंड ऑफ है वो इसी के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम लोग अभी जो 100 का राउंड ऑफ पढ़ेंगे वो भी इसी पे बेस्ड है, ठीक है। सो अभी मान लेते हैं कुछ और एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं जिसको अभी राउंड ऑफ करेंगे टू द नियरेस्ट 100। सो 739 सपोज 487 693 245। So these are the some numbers which I have taken to round off the numbers to the nearest 100। क्योंकि यहाँ पे राउंड ऑफ करके बोला जा रहा है टू द नियरेस्ट 100, सो हम लोग 100 प्लेसेस का नंबर देखेंगे पहले। तो 1 stands 100 प्लेसेस का नंबर ये सारे हैं, ठीक है। अब हम लोग ने पढ़ा था कि ये डिपेंड करता है जो भी प्लेसेस का नंबर का राउंड ऑफ बोला जाता है उसके बाद वाला नंबर पे। तो उसके बाद वाला नंबर पे डिपेंड करता है कि अगर वो 1 to 4 के बीच होता है तो सारा 0 कर देना है, और अगर 5 to 9 के बीच लाई कर रहा है तो सारा 0 करने के साथ साथ हमें जो 100 प्लेस है
100 प्लेस में 1 ऐड करना है। तो अभी हम लोग को 1 प्लेस का जो नंबर है उससे कोई मतलब नहीं है, अभी हम लोग को सिर्फ मतलब है 10 प्लेस का नंबर पे और 100 प्लेस का नंबर पे। तो यहाँ पे जब 3 है, 3 जो है इट इज लाइज बिटवीन 1 to 4, तो ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो ये प्लेसेस के बाद जितने भी नंबर्स रहता है सारे 0 हो जाएगा इन ऑल केसेस। बट इन द केसेस इट इज लाइज बिटवीन 1 to 4, वी विल नॉट चेंज एनीथिंग इन दिस 100 प्लेस डिजिट। 100 प्लेस का जो डिजिट है वो एज इट इज रखेंगे और इसका जो राउंड ऑफ हो जाएगा टू द नियरेस्ट 100, 739 का, वो 700 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से जैसे 489 है तो 100 प्लेस के बाद का जो डिजिट है ये 8 है। तो 8 है तो हम लोग ने पढ़ा था कि ये दोनों डिजिट को 0 करने के साथ साथ हम लोग का जो 100 प्लेस में नंबर है उसमें 1 ऐड करना है। तो 4 में अगर हम लोग 1 ऐड करते हैं तो 5 होगा। उसी तरह से यहाँ भी हम लोग देखेंगे 100 प्लेस के बाद वाला जो नंबर है 9 है। तो 9 है तो सबसे पहले ये दोनों तो 0 होगा ही और 6 के साथ 1 ऐड कर देंगे तो 7 हो जाएगा। इसी तरह से हमारा यहाँ भी जो 100 प्लेस के बाद वाला नंबर है वो 4 है। तो 4 है मतलब दोनों 0 तो होगा ही और 1 to 4 के बीच अगर लाइन करता है तो कोई चेंजेस नहीं होगा। सो 2 विल बी एज इट इज 2। सो दिस इज हाउ यू कैन राउंड ऑफ द एनी नंबर टू द नियरेस्ट 100। अब मान लो क्या हम लोग इस नंबर को नियरेस्ट 10 में भी राउंड ऑफ कर सकते हैं? द आंसर इज यस, हम लोग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ना, हम लोग उस केस में 1 प्लेस का नंबर देखेंगे और उसके हिसाब से टाइम्स प्लेस में चेंजेस करेंगे। तो इसका हो जाएगा हमारा जैसे नियरेस्ट 10 में अगर राउंड ऑफ के लिए बोला जाता है तो हम लोग का 1 प्लेस में 9 है तो ये 0 होने के साथ साथ इसमें 8 ऐड हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 740 आएगा हमारा आंसर। तो इस तरह से इसको अगर राउंड ऑफ करेंगे 100 में तो 700 आएगा, अगर 10s में करेंगे तो 740 आएगा। तो इस तरह से हम लोग कोई भी नंबर्स को राउंड ऑफ कर सकते हैं टू द नियरेस्ट 100। ओके, नाउ वी हैव thousands also, so let us see how can we round off the number to the nearest 1000. So let us take examples for rounding to the nearest 1000. Suppose 4, 7, 9, 8, 2 और 4 डिजिट का ले सकते हैं, 4 डिजिट का। So 3, 8, 3, 4, 7, 7, 5, 9, 2, 3, 2, 8, 7. So any random number I am taking. So now you want to round off to the nearest 1000. तो आपको 1000 प्लेस का नंबर पहले देखना है। तो 1000 प्लेस का 1 स्लैश 100,000, 1000 प्लेस का नंबर ये सारे हैं। अब आपको जो चेक करना है बेसिकली वो करना है 1000 प्लेस के बाद वाला नंबर करना है, क्योंकि इसी के ऊपर डिपेंड करता है कि ये डिजिट जो है 1000 प्लेस में जो डिजिट है वो चेंज होगा या नहीं, मतलब उसमें एक इंक्रीज करेंगे या नहीं। तो तभी हम लोग एक इंक्रीज करेंगे जब इस प्लेस के बाद वाला डिजिट जो है वो 5 to 9 के बीच में लाई करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये 5 to 9 के बीच में लाई करता है, 7, 5 to 9 के बीच में आता है। तो सबसे पहला चीज हम लोग का ये है कि ये तीनों डिजिट 0 हो जाएगा, तो तीनों डिजिट को हमने 0 लिख दिया। अब क्योंकि ये 7 है तो ये 4 जो हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ भी आप देख सकते हो 1000 प्लेस के बाद वाला जो डिजिट है 100 प्लेस में जो नंबर है 8 है, तो ये तीनों डिजिट 0 करने के साथ साथ हमें 1 ऐड करना पड़ेगा 3 के साथ। अगर 1 ऐड करोगे तो ये 4 हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग का यहाँ 5 है तो 5 है तो भी हमें 8 ऐड करना है, तो 7 जो है 8 हो जाएगा। और वहां पे आप देख सकते हो 2 है तो सिर्फ यहाँ पे तीनों 0 होके 3 एज इट इज आ जाएगा, कोई भी चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये जो भी नंबर्स है इसका राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000 ये हो जाएगा। अब इस पर्टिकुलर नंबर को अगर आपको बोला जाए आप राउंड कर सकते हैं नियरेस्ट 100 में भी और नियरेस्ट 10 में भी, जैसे हमने इसे पहले समझाया उस प्रोसेस से। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन डू फॉर द नियरेस्ट 10,000 आल्सो। 10,000 के केस में हम
को थाउजेंड्स प्लेस का नंबर पे ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा। उसी तरह से लैक्स का भी कर सकते हो, करोड़ का भी कर सकते हो, 10 लाख का भी कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज हाउ द बेसिक थिंग अबाउट हाउ टू राउंड ऑफ द नंबर टू द नियरेस्ट ऑफ एनी पर्टिकुलर वैल्यू। Let us take an example for nearest 10,000. Okay, 10,000 के लिए भी एक एग्जांपल लेके हम लोग देख लेते हैं। मान लेते हैं 4 7 3 2 8 5 6। तो इस तरह से एक नंबर है। तो इसमें हमें नियरेस्ट 10,000 में करना है। तो लेट अस सी द 10,000 प्लेस में कौन सा नंबर है? ones, tens, hundred, thousands, 10,000, राइट। तो 10,000 में ये नंबर है। तो बेसिकली हम लोग का ऑपरेशन जो करना है इस नंबर के साथ करना है, लेकिन हमें जो नंबर चेक करना है वो 10,000 के बाद वाला नंबर पे डिपेंड करता है। तो इस पे डिपेंड करता है। तो ये 2 है जो कि 1 to 4 के बीच में लाई करता है। तो ये सारे डिजिट 0 हो जाएगा और कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा 1 2 3 4 टाइम्स 0 and 3 will be as it is 7 and 4. So round off of this number to the nearest 10,000 will be this. तो इसी तरह से और भी आप एग्जांपल ले सकते हो। मान लो अगर यहाँ पे 2 की जगह पे 6 है या 7 है या 8 है या 9 है, तो हम लोग का सिर्फ एक ही चेंजेस होगा। ये जो 3 है ये 10,000 स्पेस में जो नंबर है उसमें एक ऐड हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द राउंडिंग नंबर टू द नियरेस्ट 10,000. So now let us see lakhs and 10 lakhs. Okay. So now let us see how can we round off the number to lakhs and 10 lakhs. So we will see now rounding numbers to the lakhs and 10 lakhs. तो एक नंबर लेते हैं जिसमें दोनों समझ जाएंगे हम लोग। तो सपोज 4 7 8 3 2 5 4 2 5 4 5 4 7 as much as you want. So now you have to set lakhs and 10 lakhs. So first rounding to the nearest lakh. नियरेस्ट लैक्स में राउंड करने के लिए हमें सबसे पहले लैक्स के बाद वाला डिजिट देखना है। सो वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स, 10,000, लैक्स। लैक्स प्लेस में 8 है और 8 के बाद वाला जो 10,000 प्लेस में नंबर है वो 3 है। तो इसी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो ये सारे डिजिट जो है 0 पहले तो हो जाएगा 4 टाइम 5 टाइम 0। सो 1 2 3 4 5 टाइम 0। अब हमारे ये 3 है जो कि 1 to 4 के बीच लाई कर रहा है, तो इसमें भी कोई चेंजेस नहीं होगा। सो 8 7 4 we will write directly 8 7 4 as it is. तो ये हो गया हमारा राउंड ऑफ टू द नंबर टू द नियरेस्ट लाख। अब 10 लाख के लिए हम लोग का ये है 7 है 10 लाख प्लेस में, और 10 लाख के बाद वाला जो प्लेस है वो 8 है। तो 8 है जो 5 to 9 के बीच लाई करता है। इसका मतलब हमें 1 ऐड करना पड़ेगा 10 लाख प्लेस में। ओके, सो नाउ राउंडिंग द नंबर टू द नियरेस्ट 10 लाख। सो नियरेस्ट 10 लाख में हम लोग का क्या हो जाएगा? ये 7 जो है ये 8 हो जाएगा। पहले तो ये सारे डिजिट 0 हो जाएगा, 6 डिजिट। तो यहाँ पे 6 डिजिट में 0 लिखता हूँ। 1 2 3 4 5 6 0 लिख लिया मैंने। अब क्योंकि ये 8 है तो 7 भी जो है 8 हो जाएगा। दिस विल बिकम 48. So this will be the rounding of number to the nearest 10 lakh. So this is how you can do the exercise 9.1 by yourself. So your homework will be exercise 9.1. So you don't have so much of questions, so you can do all the questions. Your homework is exercise 9.1. Thank you. Have a good time. Take care.